السيدين الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم سے معلوم کرو. جاہل ہمیشہ اہل علم سے دریافت کرتے ہیں وہ بات جس کا انہیں علم نہ ہو، مگر یہاں اہل علم کا ذکر نہیں. معلوم ہوا کہ اہل ذکر اہل علم سے بلند ہستیاں. قرآن پاک میں جن سے سوال کرنے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اب تلاش کرنا ہے کہ آسمان و زمین و دنیا و آخرت ظاہر و باطن کے متعلق کون ایسا بلند ہے جو سب کچھ بتا سکتا ہے، اور جس کا علم ایسا زیادہ ہے کہ صاحبان علم اس کے آگے طفل مکتب ہیں. تو یہ ہے اہل ذکر. ذکر قرآن پاک میں رسول اللہ کا نام ہے. اور اہل ذکر کون ہوئے؟ اہل بیت رسول. یہ وہ علم ہے جو کسی دنیاوی عالم سے حاصل نہیں کیا گیا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا. صلوات بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسول خدا جن کو لوگ کہتے ہیں بے پڑھے لکھے تھے، امی تھے. مسلمانوں رسول اسلام کو امی اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ام القریٰ یعنی مکہ کے رہنے والے تھے. ام القریٰ کسی زمانے میں مکہ مکرمہ کا نام تھا، ورنہ علم رسول وہ علم تھا جو اللہ سے رسول نے حاصل کیا تھا. وہ انبیاء سابقین سے زیادہ عالم تھے. ہمارے نبی 75-76 زبانیں جانتے تھے، اور کوئی علم کسی ذی روح کا ایسا نہ تھا جس سے آپ واقف نہ ہو. اور یہ علم رسول سے علی تک پہنچا. ارشاد امیر المومنین ہے کہ مجھے میرے حبیب جناب رسول خدا نے علم اس طرح سکھایا جیسے طائر اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. صلوات بھیجو محمد. جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کو کوفے سے باہر دیکھا اور میں حضرت کے پیچھے ہو لیا. حضرت مقام بیروت میں گئے اور وسط میں کھڑے ہو گئے. پھر آواز دی، اے یہودیو، اے یہودیو. قبر سے آواز آنے لگی، لبیک لبیک، ہم آپ کی اطاعت کو حاضر ہیں. آپ نے پوچھا تم عذاب کو کیسا پاتے ہو؟ جواب میں عرض کیا آپ کی نافرمانی کا عذاب ایسا ہے جیسے حضرت ہارون کی نافرمانی کا تھا. اور جو لوگ آپ کی نافرمانی کریں گے اور ہم قیامت کے دن ایک ہی عذاب میں مبتلا ہوں گے. حضرت نے ایک شیخ ماری، معلوم ہوتا تھا کہ آسمان پھٹ کر گر پڑیں گے. میں غش کھا کر گر پڑا. جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت یعقوب سرخ کے تخت پر بیٹھے ہیں اور سر پر جواہرات کا تاج ہے اور سرخ و زرد ہیلے پہنے ہوئے ہیں. حضرت کا چہرہ چاند کی مانند روشن ہے. میں نے کہا اے سید و سرکار، یہ تو بڑی سلطنت ہے. فرمایا ہاں جابر، ہماری سلطنت جناب سلیمان ابن داؤد کی سلطنت سے زیادہ بڑی ہے اور ہمارا غلبہ سب سے بڑا ہوا ہے. پھر جب وہاں سے واپس آئے اور کوفہ میں داخل ہوئے، میں حضرت کے پیچھے پیچھے مسجد میں پہنچا. وہ حضرت آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے اور فرما رہے تھے واللہ ایسا ہرگز نہ ہوگا، قسم با خدا میں نہ مانوں گا، اللہ کی قسم میں ایسا نہ کر سکوں گا. جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کہ مولا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ کس سے ارشاد ہو رہا ہے؟ میں تو کسی کو نہیں دیکھا. فرمایا ہے جابر، مجھے اس وقت برہوت دکھایا گیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ شیخین ان کا لشکر برہوت کے تابوت میں مقید ہے اور عذاب پا رہے ہیں. انہوں نے مجھ سے چیخ کر کہا اے ابو الحسن، اے امیر المومنین، ہمیں دنیا میں بلا لیجئے
हम आपकी फजीलत और विलायत का इकरार करेंगे। मैंने वही जवाब दिया जो तुमने सुना। ऐ जाबिर, जो वसी नबी की मुखालिफत करेगा क़यामत में अंधा मशहूर होगा और मैदान हश्र में ऊंधे मुंह फेंक दिया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हजरत आसिफ बिन बरकिया वजीर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आदम में से एक खुर्फ का इल्म था और उसकी ताकत से तख्त बिल्किस दरबार सुलेमान में हाजिर कर दिया। उनका इल्म कामिल न था मगर अली का इल्म कामिल था, और जब रिसालत की गवाही की ज़रूरत पड़ी तो खिताब इलाही हुआ, ऐ मेरे हबीब, तेरी रिसालत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफ़ी है और दूसरा जिसको किताब इलाही का इल्म है। कुरान आवाज़ दे रहा है, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम मन इंदहु इल्मुल किताब। कौन है वो जिसको किताब इलाही का पूरा इल्म है, और कौन है वो हस्ती अजीम तरीन बशर जिसको खुदा शहादत में अपने साथ शामिल फरमा रहा है। यह है ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। दावत दुल अशीरा में रसूल की शहादत दी और रिसालत की गवाही के साथ तबलीग दीन में रसूल की मदद का वादा फरमाया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। हाँ, आज़ादारा इमाम मज़लूम करबला, आज मुहर्रम की 5 तारीख आ गई। आशूरा मुहर्रम सन 61 हिजरी में फैसला कुन जंग हुई। हक व बातिल का ज़बरदस्त मुकाबला। एक तरफ तागूती ताकत पूरी कुव्वत और जुल्म के साथ बरसरे पैकार, तो दूसरी तरफ फातिमा का लाल, रसूल का नवासा, अली का फर्जंद, एक छोटी सी जमात के साथ इस्लाम बचाने के लिए सरगर्म अमल हुए। जालिमों, हम जुल्म से नहीं डरते। जाबिर, और तुम्हारा तरीका हमारे इरादा को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। तुम्हारी दौलत से हम मरगूब नहीं हो सकते। हमारे पास वो ताकत है जो बातिल का सर कुचल देगी। हम जाने देकर इस्लाम को बचा लेंगे। हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे मगर फासिद की बैयत नहीं करेंगे। ये अज़्म था हुसैनी और हुसैनी सिपाह का। आइए शब आशूर खैमों का मंजर देखें, किस तरह दुख्तरान इस्लाम कुर्बानियाँ तैयार कर रही हैं। हुसैन इबादत इलाही में मसरूफ़ है, असहाब साथ साथ हैं। नित्य शब हो गई, लोग खैमों में सोने के लिए नहीं बल्कि तैयारी के लिए। मेरे मौला ने एक बार खैमों का जायज़ा लिया तो क्या देखा, एक खैमे का पर्दा सरकाया। अजीब मंजर नज़र पड़ा। माजाई बहन खाट पर बैठी है और दोनों बच्चे सामने खड़े हैं। बीबी फरमा रही है, बच्चों जानते हो कल क्या होगा? और आगे बढ़े, कहा हाँ, कल हक को बातिल का फैसला होगा। माँ ने कहा, बच्चों अगर कल जान देनी पड़ी। मोहम्मद ने सीना तान कर कहा, मेरी जान सबसे पहले हाजिर है। माँ ने बच्चों को सीने से लगाया, आँखों से आंसू निकले। कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा भाई आदा के नरगे में है। देखो तुम सबसे पहले महबूब सदके होना। तुम जाफर तैयार के पोते हो, कमसिन हो, डर न जाइयो और बाबे जोर से आगाह कर दो अपने घराने के तौर से। तुम्हारे नाना ने खैबर खंदक में मरहब अंतर को कत्ल कर दिया था। दादा जाफर तैयार ने बहादुरी के साथ शहादत पाई। तुम्हारी नानी फातिमा जहरा ने सब्र के जौहर दिखाए और तुम्हारी माँ ने फातिमा का दूध पिया है। बेटा, दादा को जो पूछो तो अलमदार पैगंबर हाथों के अवज जिनको खुदा ने दिए दो पर। नाना सतवा आलम में न था कोई दिलावर। कर्रार की जर्रार तो सुनी हो गई मकरर। यूं सब है सरदार दिलो रो के तुम ही हो। माँ सब के गई शेर तू शेरों के तुम ही हो। हाँ, आज़ादारों, ज़ैनब की कमाई लुटने को तैयार। ज़ैनब भैया के लिए बेचैन। इमाम ने यह मंजर देखा, बच्चों के लिए दुआ की। लो आज़ादारों, आशूर की सहर आई, सुबह का तारा निकला। आदा ने
तबले जंग बजाया। हुसैन ने नमाज फज्र की तैयारी की। अली अकबर की अजान ने जालिमों के दिल दहला दिए। तीर चले और हुसैन ने तीरों के सामने नमाज फज्र अदा की। अब जंग शुरू हुई। असहाब ने बढ़कर शुजाअत के जौहर दिखाए, जामे शहादत नोश किए। हुसैन लाशे पे लाशें ला रहे हैं, बहनें मातम कर रही हैं। आज़ादारों, अब औलाद फातिमा की बारी आई। जब कासिम का लाशा खैमे में आया, कोहरा बर्पा हो गया। जनाब ज़ैनब ने देखा और मोहम्मद खड़े हैं। चुपके से पूछा, शर्म से गिर गई, क्या अली अकबर के बाद मरने के लिए जाओगे? याद रखो, माँ दूध नहीं बख्शेगी। बच्चों ने हाथ जोड़कर कहा, मामू मरने की इजाजत नहीं देते। आप अली की बेटी, हमारी मुश्किल आसान कीजिए। जनाब ज़ैनब को बच्चों की मासूमियत पर प्यार आ गया। कहा, फिज़ा भैया अब्बास को बुलाओ। फिज़ा कहीं का आका शहजादी याद फरमा रही है। जनाब अब्बास आए। बहन ने कहा, भैया आज मुश्किल हल करो, मुश्किल कुशा के फर्जंद हो। भैया हुसैन से कहना खैमे में आओ, ज़ैनब बुला रही है। अब्बास आ गए। इमाम ने कहा, भैया क्या कलेजे के लिए और तो जाग लाए हो? बहन से कहना बस यही दौलत है, बर्बाद न करो। अब्बास ने कहा, आका शहजादी बुला रही हैं। इमाम तशरीफ लाए। बहन दौड़ कर लिपट गई। भैया बहन नादार है, सिवाय इस हकीर हदिया के कुछ पास नहीं है। अली अकबर अली असगर का वास्ता, ये हदिया कबूल हो। भैया इसने जिहाद दीजिए, मैं कुर्बान, उन्हें मना न करना। इमाम ने हसरत से बहन को देखा। भैया के घर में कुछ न था। हुसैन शर्मसार है, गम के सिवा कुछ न दे सका। अच्छा बहन, सीने पर 2 दाग ही सही। बच्चों को गले से लगाया। सिधारो, नाना कौसर पर तुम्हारे मुंतज़िर हैं। ज़ैनब ने शुक्र का सजदा किया। बच्चों का लिबास बदला, 2 नीचे कमर से बांधे। फिर से कहा, बीवियों से कह दो मेरे लाल दूल्हा बने हैं। देख जाओ, सब बीवियाँ आई, गले लग के रुखसत किया। माँ ने कहा, सिधारो देखो, मामू के बदले भूख में तलवार खाइयो। अरे गर्मी बहुत है, खून में अपने नहाइयो। इन छोटी छोटी तेगों के जौहर दिखाइयो। माँ सदके जाए खैमे में अब न आइयो। ज़ैनब के लाल खैमे से निकले। इमाम ने गले से लगाया। अब्बास तो अली अकबर ने घोड़े पर बिठाया। बच्चे मैदान में गए। जनाब ज़ैनब सजदे खालिक में बारेला, ज़ैनब की कमाई कबूल हो। बच्चों ने जिधर पढ़ा, ऐ फौज अशकिया, हम जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर कर्रार के नवासे हैं। हमारे मामू हुसैन को फतह कर रोज़े महशर खुदा को क्या मुँह दिखाओगे? जवाब में तीर बरसे, तलवारें चली। बच्चों ने अली का नाम लेकर नीमचे संभाले। जंग शुरू हुई। फौज आदू में शोर मच गया। ये अली के शेर हैं, ज़ैनब के दिलेर हैं। टूट पड़ो, सारा लश्कर टूट पड़ा। दोनों बच्चों ने खोल कर जंग की। अब्बास और अकबर दादो शुजाअत दे रहे थे। एक बार बच्चे जुदा हो गए, नर गए, आधा में गिर गए। शकी टूट पड़े और घोड़े से गिरे। आवाज मामू जान अदिकनी। हुसैन दौड़े, अली अकबर और अब्बास चले। हुसैन पहुंचे तो क्या देखा, दोनों बच्चे खून में गलता है। इमाम ने उनको उठाया, अब्बास ने मोहम्मद को उठाया। लाशें खैमे की तरफ ले चले। पर्दा हटा हुआ है, फिज़ा खड़ी है। इमाम अली मकाम ने फर्द गम से बेकरार होकर कहा, कह दे कोई जाकर मेरी नादान बहन से, हैदर के नवासों की बारात आई है रंग से। खैमे का पर्दा उठा, नन्ही मैयतें खैमे में आई। लाशें फर्श पर लिटाए,
बीबियां पीटने लगी, हाय ज़ैनब की कमाई लुट गई। इमाम ने कहा ज़ैनब नजर नहीं आ रही है। फरमाया उम्मे लैला दुखिया बहन कहाँ है? बीबी ने जवाब दिया आका शहजादी शर्म से लाशों पर नहीं आ रही है। मौला बहन को बच्चों के लाशें पर लाइए। इमाम गए, ज़ैनब को मुसल्ले से उठाया, गले से लगाया और किस याद से फरमाया लाशों पे रोने का सामा करो बहन। अरे आंसू बहाओ खाके गरेबा करो बहन। लो खाक उड़ाओ नालों से बन करो बहन। अरे चादर उड़ाओ बाल परेशान करो बहन। सीने में गम से दिले जार फट न जाए। अरे ज़ैनब मकाम ज़ब्त नहीं दम उलट न जाए। ज़ैनब का बाजू पकड़ा, बच्चों के लाशों पर लाए। हुसैन हट गए, बीबी दोनों लाशों के दरमियान बैठ गई। आवाज दी मेरे शेरो, ए मेरे दिलेरो, माँ को सुरखुरू कर गए। बीबियों गवाह रहना मैंने उसे दूर